Good morning parents, सुप्रभात. Welcome back after summer vacation. First of all, मैं आप लोगों को सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ. Thank you so much for cooperating during the lockdown period in April and May. आप लोगों का साथ था तभी हम लोगों ने बच्चों को लर्निंग थ्रू ऑनलाइन सिखाया. I am Mrs. Nitisha Verma, coordinator of nursery wing and class teacher of nursery A. हमारे नर्सरी विंग में 4 सेक्शन हैं, A, B, C, D. नर्सरी A, आई एम द क्लास टीचर. नर्सरी B, मिसेस दीप्ति. नर्सरी C, मिसेस सुरेखा. एंड नर्सरी D, मिसेस चंचल. जैसा आप लोग जानते हो, नर्सरी के बच्चे अभी तक घर से निकले नहीं हैं. They have not gone out. They don't know what is school. They don't know what is the playground. But during this COVID-19, we are trying to convey, we are making short videos and videos के through बच्चों को learning, activities, worksheet, playway method से और lots of activities से हम उनको सिखाना चाहते हैं. बच्चे सीख भी रहे हैं, प्रेयर भी सीख रहे हैं, गुड मैनर्स भी सीख रहे हैं, हाइजीन क्या होती है, मॉरल्स क्या होती है थ्रू स्टोरी. ये सब सिर्फ सक्सेसफुल होगा और हो रहा है पेरेंट्स आपके कोऑपरेशन से. वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू इनकलकेट एज मैनी एज गुड थिंग्स इन योर किड्स. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द सब्जेक्ट्स. एवरीथिंग जो भी हम बताएंगे वीडियो के थ्रू, it will be all playway method, activity based method. Like आपके पास वर्कबुक के सेट्स होंगे, 6 वर्कबुक. रीराइटिंग स्किल्स, स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स, मैथमेटिक्स, बाल गीत, हिंदी कविता, नर्सरी राइम्स and to play with colors. बच्चों को शेप्स, कलर्स सभी चीज़ बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में बच्चों के ये फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. सो दे विल ओनली यूज़ क्रेयॉन्स, दे विल नॉट यूज़ पेंसिल्स एंड इरेजर्स. पेरेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट that let your child enjoy, play and learn. There is no end to learning. मैं सभी टीचर की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ. Thank you so much for this orientation program. You are listening so carefully. And now I hand over to Chanchal, who is going to explain you all about English. Thank you so much, parents. Good morning, parents. Suprabhat. Hello children, how are you? I hope everyone is keeping a good health and washing their hands frequently. I am Mrs. Chanchal Singh. I will be taking the nursery section and today I am going to tell you about the English language. आज हम बच्चों को ये बताएंगे और पेरेंट्स को कि हम नर्सरी में इंग्लिश में क्या क्या करवा रहे हैं. So this year we are taking the alphabets A to Z. That is the smaller case. हम small alphabets बच्चों को सिखाएंगे. Now how do we teach them? आता ही हम बच्चों को alphabet writing नहीं कराते हैं. This is oral. Orally we first teach them A to Z. That is A to Z song. Then we give them the pre-writing concepts. Pre-writing concepts and the line concepts are very important. आप बच्चों को जब लिखना सिखाएंगे तो पहले ये line concept बहुत जरूरी है. For example, the standing lines, the sleeping, the slanting and the curved. अब इन lines को हम through worksheets बच्चों को activity कराते हैं. These are the colorful worksheets which children love to do with the standing, sleeping and slanting lines. Now, जब बच्चों को हम सिखा रहे हैं alphabets, तो हम क्या use करेंगे? We will be using flashcards. These are known as flashcards. उनके
वन साइड में आपके अल्फाबेट होगा एंड द अदर साइड विल हैव द पिक्चर्स related to the alphabet. We'll also show them the pictures like U for umbrella, I for ice cream, G for grapes. So they will have the picture recognition also. Then if we are starting an alphabet, अगर हम alphabet start करें, suppose we are starting an alphabet B, so we'll go with a story. हम एक story के माध्यम से बच्चों को letter B सिखाएंगे. For example, there was a bear named Balu. Balu likes to play with ball and bat. He loved playing with balloons. And he had many good friends like a bird, butterfly and bees. So the sound produced by each letter is known as a phonic sound. हम बच्चों को फोनिक साउंड भी सिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब ब बॉल, ब ब बैट, ह ह हैट, एप्पल. सो फोनिक साउंड के साथ साथ हम अगर इतनी सारी चीजें दिखाएंगे तो बच्चों का एक वोकैबुलरी एनहेंसमेंट भी होगा. बच्चों को जब हम फाइनली लेटर्स करवाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सूजी ट्रेसिंग. ये सूजी ट्रेसिंग बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती है. उसमें आप अल्फाबेट्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल C, अ स्टैंडिंग लाइन एंड अ कर्व. A, स्टैंडिंग लाइन एंड अ कर्व ऑन द राइट साइड इज B. स्टैंडिंग लाइन एंड अ हाफ कर्व मेक्स E. Standing line and a small circle, I. So this is सूजी ट्रेसिंग एक्टिविटी. अब बच्चों को लेटर्स हमने ओरली बता दिए, स्टोरी बता दी, सूजी ट्रेसिंग करवा दी, लाइन कॉन्सेप्ट बता दिया. नाउ इज द राइटिंग पार्ट. विल मेक सच वर्कशीट्स और उसमें हम लेटर A लिखेंगे तो बच्चे इसमें बिंदी पेस्टिंग करेंगे और फिंगरप्रिंट भी करेंगे. So, according to the alphabet and the picture, they will be using their fine motor skills for different activities. So, this is how we will be going about the language English in nursery. We have an AV room. We'll do different rhymes, poems and small sentences which children can understand. Like, come here, let's go out and play, let's do the prayer. So, this is going to improve their English language as well as the vocabulary. Thank you so much and I hope everyone keeps safe and be healthy. Now I hand over to Mrs. Deepti Tewatia. Good morning parents. शुभ प्रभात. कैसे हैं आप? Hope you all are fine. I'm Deepti Tewatia, class teacher of nursery B. As you know, this lockdown has pushed us to take drastic measures and make sure the academic year remains unaffected due to pandemic. It is only with the cooperation of teachers, parents and students that online learning can be made a success. So today I am going to tell you about what we do in maths in this session. So here we go. In maths we do 1 to 10, but parents we use only crayons, not pencils or erasers. हमें पेंसिल और इरेजर यूज नहीं करने हैं छोटे बच्चों के साथ. हम सिर्फ crayons यूज करेंगे बिकॉज उनसे अच्छी ग्रिप बनती है. और एवरी मंथ वी डू ओनली 1 नंबर. जैसे हमने लास्ट मंथ 1 किया था, अब हम 2 करेंगे, नेक्स्ट मंथ 3, ऐसे करते करते हर मंथ हम 1 to 10 हमें कंप्लीट करना है. और जो हम सेशन करेंगे उसके बाद हमें उसका रिकैप्टिवलेट, हम उसको रिवीजन भी करेंगे और उसका एक एक चीज हम रिवाइज भी करवाते हैं. और हम सीधा हम नोटबुक में बच्चों को ट्रेस नहीं करवाना, पहले हम उसको एयर ट्रेसिंग करवाएंगे लाइक दिस 1. आपने देखा होगा हमारी वीडियोज में. हम सूजी में करवाते हैं उसको, हम बिंदी पेस्टिंग करवाते हैं, हम फ्लोर में करके दिखाते हैं. प्लीज आप ऐसे ही बच्चों को करवाना और उसके बाद ही आप नोटबुक में पहुंचना. अगर हम डायरेक्ट नोटबुक में पहुंचेंगे, एक तो बच्चे को मजा नहीं आएगा और बच्चा सीखेगा नहीं. तो हमें धीरे धीरे स्टेप वाइज हमें वो एक्शन लेना है. प्लस वी प्रोवाइड वर्कशीट्स ऑल्सो. हम आपको वर्कशीट्स भी देंगे बनाने के लिए. प्लस हमारे पास वर्कबुक भी है. और प्लीज आप जिसने बुक्स नहीं खरीदी हैं, आप जो न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज आप ले लेना. जैसे ये 1 है, हम
ऐसे 1 बनाएंगे, 2, धीरे धीरे हम ये सारे काम करेंगे। देन आता है प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट, उसमें आता है आपका जैसे हमने लास्ट मंथ किया था सर्कल शेप, ऐसे ही हम धीरे धीरे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर हम सब करेंगे और वही ट्रेसिंग, देन फ्लो, देन बिंडिंग और नई नई एक्टिविटीज हम लाएंगे करने के लिए। इससे हम कोशिश करेंगे बच्चों को नया नया दिखाएं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है वीडियो का कि आप ये कभी भी देख सकते हैं वीडियो। और इस कॉन्सेप्ट में अगर शॉर्ट एंड टॉल, हमने शॉर्ट एंड टॉल एंड बिग एंड स्मॉल हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वी डू इज अप एंड डाउन, और धीरे धीरे चलना है। बच्चों को हमें कोई बोझ नहीं देना जिसे बच्चा समझ सके। प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट में हम करेंगे नियर फार, हेवी एंड लाइट, सेम एंड डिफरेंट। ये सब हम कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करेंगे, हमें पूरा ईयर एंड तक ये करना है। और सेशन एंड में हम पेंसिल का स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे जो होता जाएगा उसकी हम रिवीजन डे बाय डे करवाते रहेंगे। और क्योंकि बच्चे की फॉर्मेशन में ध्यान देना है, और बच्चे की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बच्चा रिकॉग्नाइज करे उस चीज को जो हमने सिखाया है। हम बोले कि वन होता क्या है, ये नहीं है कि वन हम लिख कर दिखा दे। जब तक बच्चा वन समझेगा नहीं वन है क्या, टू है क्या, जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो बेस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देन एट द एंड इफ यू आर एनी डाउट, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज कॉल अस एनी टाइम। So thank you parents. Over to you, Surekha ma'am. Good morning everyone. I am Surekha Sharma, class teacher of Nursery C. I hope you all are safe and sound. Firstly, I am very thankful to all of you for successful online classes. It would not have been possible without you. Today I am going to tell about Hindi language. हम सभी हिंदी भाषा का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने के लिए अक्षरों की आकृति की पहचान और उनका सही उच्चारण आवश्यक है। नर्सरी के बच्चों को स्वर सिखाने के लिए अक्षर पर उंगली रखकर 2 से 3 बार दोहराना होता है, जैसे अ, अ, अ। फ्लैश कार्ड की हेल्प से बच्चों के शब्द ज्ञान यानी वोकैब को बढ़ाया जाता है। शब्द के पहले अक्षर को जोर देकर पढ़ा जाता है, जैसे अनार, अनार, अनार। ऐसा बार बार करने से बच्चे को अक्षर की बनावट समझ आ जाती है और वह उसे पहचानने लगता है। लिखना सिखाने से पहले प्री राइटिंग स्किल और फाइन मोटर एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे की पेंसिल पकड़ने की एबिलिटी को बढ़ाया जाता है, जैसे टीयरिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी, सूजी एक्टिविटी, एयर राइटिंग एक्टिविटी एंड वॉकिंग ऑन लेटर्स ऑन द फ्लोर। इसके बाद बच्चों को ट्रेसिंग वर्कशीट्स एंड अदर इंटरेस्टिंग वर्कशीट्स करवाई जाती हैं। नाउ चाइल्ड इज कैपेबल टू राइट इन नोटबुक। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरी टेलिंग। बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। स्टोरी सुनते समय वो अटेंटिव रहते हैं और फुल कंसंट्रेशन के साथ हमारी बात को सुनते हैं। स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम अपनी बात इजीली कन्वे कर सकते हैं। इससे उनकी वोकैब इंक्रीज होती है, वे सीक्वेंसिंग और पैटर्न को समझने लगते हैं, जैसे स्टोरी में पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ। इससे उनकी इमेजिनेशन पावर इंक्रीज होती है और वो अपनी एक स्टोरी क्रिएट करने लगते हैं, और इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल्फ हाइजीन। सेल्फ हाइजीन इज अ पार्ट ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन। नर्सरी में बच्चे हैंड वॉश करना और टॉयलेट ट्रेनिंग में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे अपने आप को मैनेज करना सीख जाते हैं। Thank you so much. Have a nice day.